یہ آپ کا مسئلہ ہے. خلافت کا سوال ہے، خلیفہ کا کہاں پر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے؟ نعرہ تکبیر اسلام احمدیہ زندہ باد. ہاں جی دیکھیں، سہیل ناصر صاحب چپ کر دیں. ہاں جی ہاں جی دیکھیں، سن لیں میری بات. دیکھیں یہی بات تو ہم ہر وقت کہتے ہیں. اسلام احمدیہ زندہ باد. ہاں جی جناب، ہمیں نبی صاحب 500 یورو نکالیں. یار آپ چپ کرنا ہے، بات کرنے دینی کہ نہیں ان کو، طارق چوہان صاحب کو؟ آپ نے بھاگنا نہیں ہے، اس بات سے بھاگنا بھاگ نہیں کے ہے. اس نے کتنے جانا ہے بھائی؟ اوہ ایسی کتنے چلے ہیں بھاج کے؟ گل تے کرن دے کسے بندے نو، اگلے نو بھی شور کری جا رہے ہو. 500 یورو تک. آؤ ٹھیک ہے، خاموش ہو جو. 500 یورو بات کرنے دے طارق چوہان صاحب. ہاں جی دیکھیں، آپ نے یہ بات ہم پیش کرتے ہیں جی، ہم یہ بات پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دوسری قدرت کا ذکر کیا تو وہ کس کے مطابق ہوگی؟ وہ آیت استخلاف کے مطابق. انہوں نے ذکر بھی کیا، حضرت ابو بکر بھی آیت استخلاف کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، اور انہوں نے مرزا صاحب نے آپ کے سامنے میں نے حوالہ پڑھا، اس میں وہ آیت استخلاف کا ذکر کر رہے ہیں کہ دوسری قدرت آیت استخلاف کے مطابق ہوگی اور وہ آسمان سے آئے گی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے فوراً بعد نہیں آئے گی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ مل کر دعائیں کریں. اور اس وقت تک انہوں نے بتایا کہ جب تک وہ کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، اس وقت تک آپ کے لیے ایک نظام انہوں نے بنایا کہ جس کے اوپر 40 لوگ متفق ہوں، وہ میرے نام پر بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو. یعنی دوسری قدرت جو تھی وہ آیت استخلاف کے مطابق ہونی تھی. اور آیت استخلاف میں ہم نے صبح کی ساری ڈسکشن میں بتایا ہے کہ مرزا صاحب نے اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ روحانی خلافت ہے، وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں. اس کے متعلق مرزا صاحب نے بتا دیا. پھر مرزا صاحب نے کہا کہ اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو. تو وہ کون ہے جو خدا سے روح القدس پا کر کھڑا ہوگا؟ مرزا صاحب نے اس کے متعلق بھی بتا دیا. وہ کہتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور ان دنوں کے منتظر رہو، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور مرزا صاحب کی یہ بات کہ جی آیت استخلاف میں جو ذکر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا، اسی کے تحت حضرت ابو بکر آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور مرزا صاحب کے بعد وہی خلافت ہے جو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ دائمی ہے، اس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. تو مرزا صاحب کس کو دائمی خلافت کہہ رہے ہیں؟ دائمی روحانی خلافت کہہ رہے ہیں. وہ سلسلہ مجددین ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری ہے، اور اس میں قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے. تو خلیفہ مرزا صاحب کے بعد خلافت کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں، آپ کے سامنے حوالہ بھی سارا پیش کر دیا. اور پھر یہ کہ دیکھیں یہ ڈنڈی کتنی بڑی مارتی ہیں، یہ میں آپ کو اس کا ثبوت پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے نا کہ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. آپ جماعت احمدیہ کے خلیفوں کی تقریریں سن لیں، ان کے خطبے سن لیں، ان کی کتابیں سن لیں، یہ اس سے جو اگلے الفاظ ہیں نا وہ کھا جاتے ہیں، وہ بیان ہی نہیں کرتے. مرزا مسرور صاحب نے 10 جون 2011 کو خطبہ دیا اسی موضوع کے اوپر، یہ الفاظ وہ کھا گئے. مرزا طاہر نے خطبہ دیا، وہ یہ الفاظ وہ کھا گئے. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو. یعنی فوری بات جو مرزا صاحب نے پروگرام پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس پر 40 مومن متفق ہوں گے وہ میرے بعد بیعت لینے کا مجاز ہوگا، لیکن اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو. اور وہ کون ہے اس کے متعلق بھی مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص کو میری ذریعے سے قائم کیا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ قرب اور وحی سے مخصوص کرے گا. تو مرزا صاحب نے تو سارا پروگرام اس میں بتا دیا اپنے بات. تو وہ جو حکیم نور الدین صاحب تھے نا، وہ اسی کے تحت کہ جس آدمی پر جس پر 40 افراد 40 مومن، جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا. اس کے تحت حکیم نور الدین صاحب تو بن گئے جیسے کہ مرزا صاحب نے کہا ہوا تھا.
لیکن مرزا حکیم نور الدین صاحب کی وفات کے بعد مرزا محمود صاحب نے تو وہ جو خلیفہ کی جانشین انجمن تھی اس کو تو توڑ دیا، اس وجہ سے کہ ان کو پتہ تھا انہوں نے مجھے تو نہیں بنانا، تو انہوں نے پھر مرزا خاندان کی ایک گدی بنا دی جس کو انہوں نے خلافت حقہ اسلامیہ میں کہا کہ یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں، جو مجلس شورا جو پہلے تھا نا وہ اس کو طریقہ کو میں منسوخ کرتا ہوں، کیونکہ اس طریقے سے تو 2-4 لفنگے کھڑے ہو کر کہہ دیں گے خلیفہ منتخب ہو گیا ہے، اس لیے میں نیا یہ طریقہ بناتا ہوں کہ نئی کمیٹی ایک ایسی بنے گی جس میں مرزا خاندان کے لوگ ہوں گے، ان کے جو تنخواہ دار ملازمین ہیں وہ شامل ہوں گے، اور یہ کہ ہم نے بہت سوچا کہ کس طریقے سے یہ خلافت بنائیں، تو ہمیں یہ طریقہ پسند ہے پوپ کی طرز کا کہ چند لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں اور ہم کہہ دیں گے کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا۔ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب آنے آئے جی ٹروتھ سیکر صاحب اوپر تشریف لائیں اور بتائیں کہ یہ جو مرزا صاحب نے کہا ہے مل جل کر کام کریں جب تک کوئی روح القدس سے وہ طاقت پا کر کھڑا نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کھڑا نہ ہو، ہاں جی بیان کریں جی۔ جو بات جو آپ نے کہا تھا کہ مجھے دکھا دیں کہ دوسری قدرت سے مراد خلافت ہے، ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ دوسری قدرت بتاتے ہوئے انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کی مثال دی اور یہ بتایا کہ اسلام میں یہ دوسری قدرت ہے، یہ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو ذریعے سوال پوچھا گیا اس کا جواب نہ دینا، ادھر ادھر بھاگنا، جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب نہ دینا، اب اور نہ بھاگیں آپ، سوال جو پوچھا گیا اس کا جواب دو، آپ بات کو پھر بات وہی ہے، جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دو، آپ کی کاٹنی پڑے بات اور سمپل جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دے دو، مجھے ایک بات تو کرنے دیں، اور جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دے دو، قوالی نہ کرو، دماغی توازن ٹھیک ہو ہے آپ کا، اور سوال کا جواب دو، قوالی نہ ایسی چوٹیں کرو، لگی ہیں دلیلوں سے کہ آپ کا دماغ جو سوال کا جواب نہیں دیں گے، نہیں کہتے مل جل کر کام کرو جب تک باتیں کیوں ہیں، جب تک روح القدس سے قوت پا کر بندہ کھڑا نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آتا ہوں روح القدس سے طاقت پا کر بندہ کھڑا نہ ہو تب تک مل جل کر کام کرو، اس کا مطلب بتاؤ، بس ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ ہاں جی اچھا جی، اور طارق چوہان صاحب ایک بات اور ہے، آپ کا جھوٹ تو ایسا پکڑا گیا کہ کومنٹس میں لوگوں میں وہ بڑی نعرے مارے تھے، میں نے کہا قسم اٹھائیں کہ ان کا جھوٹ ہی پکڑا گیا، انہوں نے قسم نہیں اٹھائی، بھائی جو سوال پوچھا اس کا جواب دو گے کہ نہیں؟ پکڑا گیا تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث کی ایکسپلینیشن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے، اور آپ کا وہ جھوٹ پکڑا گیا کیونکہ وہ آپ جھوٹ پکڑا گیا، فلانا جھوٹ بولتا پکڑا گیا، فلانے کا جھوٹ پکڑا گیا، آپ نہیں دکھا سکے اور آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ کا جھوٹ پکڑا گیا، جھوٹ بول رہے تھے، جمیل عوان صاحب نے فلانا جھوٹا فلانا جھوٹا فلانا، یہ تربیت ہے آپ کی، اب عامر نذیر صاحب 500 یورو، یہ تربیت ہے آپ کی، آپ نے ایک منٹ رونا نہیں ہے آپ نے، جہاں پہ شور نہیں مچانا، آرام سے بات سنیں، میں جب گیا ہوں آپ نے کہا ہے کہ ہاں میں دوں گا، ایک منٹ رک جائے، شور نہیں مچانا، 5 منٹ سے تو آپ یب یب کر رہے ہیں، کتنے منٹ اور رکنا ہے؟ جب میں گیا ہوں آپ نے کہا میں دیتا ہوں 500 یورو، ٹھیک ہے، اب آپ نے وعدہ خلافی کرنی ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں میں دیتا ہوں 500 یورو، اس کا مطلب پہلے بیان کرو۔ آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے جب میں ریموو ہوا ہوں نا، آپ نے کہا میں دیتا ہوں 500 یورو، ٹھیک ہے، میں ان بھی کہہ رہے ہیں دینا، کٹو تو خلیفہ کٹو بات بھی پیش کر دی آپ، بھائی تو خلیفہ کٹو، رولا نہ پاؤ، خلیفہ کٹو تو 500 یورو لو، آپ کہیں اور نہیں تو بھاگنا، خلافت اپنی کٹو تو 500 یورو لو، کٹو تو خلیفہ اپنا، کتنے خلافت ہوڑی آتے؟ ہاں ایکسپلین تو 500 یورو کہہ دیا تھا، میں ہوں نہیں کہنا تو میں 500 یورو دینا ہے، تو خلیفہ کر دو اپنا دے بچو، روح القدس سے جب تک روح القدس سے طاقت پا کر بندہ کھڑا نہ ہو تب تک مل جل کر کام کرو، اس کا جواب دیا اس بندے نے، سہیل ناصر صاحب، یہ ہے آپ کا مناظر، پوچھے اس نے جواب دیا اس سوال کا کہ جب تک روح القدس سے طاقت پا کر بندہ کھڑا نہ ہو تب تک مل جل کر کام کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلو جی مائک اوپن کرو، دو جواب بھائی۔ میں انتہائی کم عقل انسان ہوں، لیکن اتنے کھلے کھلے الفاظ میں نے کہا تھا نا، یہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں کا، فوراً ہی پلٹ کے وار کرتے ہیں، زیادہ ٹائم صبر کرو تو انہوں پتا نہیں،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਿਆ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ रूह मुझ जैसे जाहिल खलो तो दिमाग जाओ ना, के रोला लोग- तो ना पाओ है, इस तरह ना करो। और नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, जब तक रूहुल कुदस से ताकत पाकर कोई बंदा खड़ा ना हो जाए तब तक मिलजुल कर काम करो। रूहुल कुदस से ताकत पाकर जब तक बंदा खड़ा ना हो, इसका जवाब किसने देना है कोई बंदा जो जवाब दे इस सवाल का? 500 यूरो भी मैं देता हूँ, इस सवाल का जवाब दे दो। सच्चा आशिक रसूल फौरन पलट के वार किया, इस्लाम के ऊपर हरफ नहीं आने दिया। इस्लाम का दिफा ऐसे करते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम मिर्जायत इस्लाम अहमदियत जिंदाबाद। ਮਿਰਜ਼ਾਇਤ ਉੱਤੇ ਰਬ ਨਹੀਂ ਆਮਣ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਇਤ ਉੱਤੇ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा आज भाई, मेरे दिल च इसका जवाब देना इस्लाम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत च 100 गुना इजाफा हो गया कि आयत इस्तखलाफ के हाँ, मुताबिक ठीक है। आएगी। तो आयत इस सवाल का जवाब जज़ाकल्लाह तारिक साहब, आमिर साहब, आमिर नज़ीर साहब, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का। आपके सामने जो दलाइल हैं वो रखे हैं, आपके दिल गवाही दे रहे हैं, बल्कि आप लोगों ने बात करते हुए मेरी बात को ही की गवाही भी दी है, ठीक है। और बात वाज़ेह हो गई है। अब पहले जो की इक़्तिबास- गुजारिश है जड़ा रूहुल कुदस वाला सीकर मसला साहब निकला दिलों है पे मोहर लगी हुई है, जो हिदायत रूहुल अंदर नहीं कुदस वाली, जाएगी। एक मिनट खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ। ਹਿਦਾਇਤ ਅੰਦਰ- ਓਏ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਖਾਤਮ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਖਾਤਮ ਅੱਲਾ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖਾਤਮ ਅੱਲਾ ਪੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰੀਨ ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਮੁਨਕਰੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ। जो बात पूछी जा रही है वो ये है कि रूहुल कुदस से ताकत पाकर जब तक बंदा खड़ा ना हो तब तक मिलजुल कर काम करो। इसका मतलब बता दे। 500 यूरो भी मैं देता हूँ, इसका मानी बता दे बस। आमिर नज़ीर साहब आपकी इसका माने जो सवाल किया गया है, नहीं तो म्यूट कर दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब दो। रूहुल कुदस से जब तक बंदा ताकत पाकर खड़ा ना हो, वो कौन है बंदा जिसने रूहुल कुदस से ताकत पाकर खड़े होना है? ये तब तक मिलजुल के काम करना खत्म है। होने वाला नहीं है। ये तो खिलाफत आप किधर करते गई फिर जाइए। तू? जो जिस बात का आप- पहले सवाल किया था उसका जवाब जब मिल चुका है तो 500 यूरो तो देना पहले। ये वही और सवाल आपने है। मुझे रिमूव वो करते वही हुए सवाल है, मुझे रिमूव खिलाफत- करते हुए ये स्पेशल कहा था कि मैं ओ 500 यूरो खिलाफत देता दा हूँ। ते जिक्र ही ये भी कोई आपने कह दिया नहीं। था। ओ 500 यूरो हुन मैं देना, तुसी तो खिलाफत काट दो अपनी। किथे खिलाफत है ते लिखी? नहीं पहले आप कुदरत सानिया दा मैंने खिलाफत हुंदा है। मेरी बात सुनिए। जब मैं रिमूव हुआ हूँ आपने कहा अच्छा मैं आपको देता हूँ अकाउंट 500 नंबर भी यूरो। उसके मांग बाद लिया। मैं रिमूव हो गया। जा झूठ ना बोलो और ना झूठ पे झूठ बोलते जाओ, कुछ शर्म जब मैं करो। remove हो और तो आपको पहले बार आपने बार कहा- कहा जा रहा है इस सवाल का जवाब दे दो। इस सवाल का जवाब दे दो। रूहुल कुदस से ताकत पाकर जब तक बंदा खड़ा ना हो तब तक मिलजुल कर काम करो। इसका क्या मतलब है? कड्डो खिलाफत है आपकी तू। हालत- ले आओ रूहुल कुदस वाला केड़ा बंदा है? आप इस सवाल का जवाब देना है। रूहुल कुदस से ताकत पाकर जब तक बंदा अहमद खड़ा अली ना साहब हो, मुझे म्यूट करिए आ रहे हैं। वो केड़ा बंदा है अच्छा, जिसने रूहुल कुदस से ताकत पाकर खड़े होने? वो तो अब्दुल खवार जंबा है जिसका दावा अच्छा है। जी। आप में से किसी का दावा है तारिक रूहुल साहब कुदस देख से ताकत पाने लें का? देख लें कैसी वो इत्तबात ओ भाई, के रूहुल इनकी कुदस से ताकत पाकर खड़े होने की का हालत दावा बिगड़ किसका गई है? है जिससे साफ जाहिर है कि इनको बड़ी नदामत का सामना है। देखिए आमिर नज़ीर वो साहब कहाँ ना कर ਝੂਠ ਆਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਦਾਮਤ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ करवाते रहे। बड़ा झूठा ਇਹਨੂੰ आदमी, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੱਤਰ। बहुत ही झूठा आदमी यार, बहुत ही शाबाश। कज़ाब आदमी। ये एक और गालियों वाला ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਝੂਠਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆ। ये शरारतें और आवारा लोगों की तरह बातें कसना ये तो आपके और रूहुल कुदस और को इस- पूछा जा रहा है आपसे। आपकी हालत देख ले। और एक सवाल पूछा जा रहा है कि है। रूहुल कुदस से ताकत पाकर खड़ा होने का दावा किया किसका जा है? रहा है और खुद शोर मचाई और जा रही है। सवाल कभी का इधर जवाब भाग रहे हैं, ना कभी दोगे। उधर भाग रहे हैं। जब तक सवाल का जवाब ना दोगे आपको जा म्यूट रहे रखा हैं। जाएगा। ये क्योंकि तो आपने आप सवाल का जवाब ये देना नहीं तो आपको बोलने देना नहीं। रूहुल कुदस से ताकत हालत है। इधर से आगे भागी जाए दौड़की ऐसी लगाई कि कोई आपकी लाओ स्पीड का बंदा। मुकाबला
फिर वही गल कहां लाइए आमिर नजीर साहब, और आपके रूहुल बोलने कुदस का का स्टाइल दास भी बड़ा खराब हो चुका है। ऐसे जैसे एक कौन? बंदा रोने वाला नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं खराब ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆ नहीं, बिल्कुल नहीं ਖਿਲਾਫਤ खराब ਤੋਂ होएगा। ਜੋ इस सवाल वक्त का जवाब हालत देना तो आपकी उत्तों खराब टाटा है, लगे हुए हैं, आप बोलने दे रहे हौसला अगले करें, पानी पिए, बात सिंपल है। ओए देखें, हौसला आपने तुसी इरादा करोगे किया तो था करोगे 500 तो यूरो का गल वादा करेंगे। किया था, अब मैं आ गया, जमाने के सामने मैं अपनी- नादिम ना मैं हो बिजी और होने लगा, मैं 500 माइक यूरो म्यूट करने दें। लगा। क्या भाई गल समझ गए हो ना? हाँ जी, इन्हें पूछना पूछने जरा लगा रूहुल हूँ, कुदस 500 यूरो दें, पहले अकाउंट नंबर लें मुझसे, 500 यूरो दें। इक़्तिबास ਮੰਗਤੇ आपके ਹੋ सामने ਪਹਿਲੇ पढ़ा ਆਪਣੀ जा चुका ਖਿਲਾਫਤ है। ਤੇ ਕੱਢੋ 500 ਉਹ भाग ये ਖਿਲਾਫਤ भाग गए ना ਤੁਹਾਡੀ आमिर ਉਹ नजीर ਕਹਿੰਦੇ साहब, ਘੁਸ ਗਈ आमिर नजीर साहब ਮਿਰਜ਼ਾ भाग गए ਸਾਹਿਬ ਦੇ ना। ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ आप ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਾਦੇ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹੋ अपना गालियों ਮਿਰਜ਼ਾ वाला ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ गालियों ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ वाला ਤੱਕ बच्चा, ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ हमारा ਤਾਕਤ ਨਾਲ बच्चा ਬੰਦਾ ਨਾ बुलवा लिया ਖੜਾ है। ਹੋਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ आमिर ਕਰਨਾ नजीर ਉਹ साहब ਬੰਦਾ भाग ਦੱਸੋ गए ਕਿਹੜਾ फिर। ਖਿਲਾਫਤ आमिर ਕਿੱਧਰ नजीर ਗਈ साहब भाग गए जनाब। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 500 ਭਜਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ यूरो ਤੇ हाँ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ अहमद ਰਹਿੰਦੇ ਆ अली ਕੰਮ साहब ਤੇ मुझे ਹੁੰਦੇ ਆ 500 यूरो ਉਹ ਦੱਸ आपसे ਵੀ ਉਹ लेके देने हैं। ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ इन्होंने इक़्तिबास ਰੂਹੁਲ मांगा ਕੁਦਸ था, ਨਾਲ खड़ा होया, रूहुल इक़्तिबास कुदस दे की ताकत दिया। नाल। तारिक मिर्ज़ा तो मुकर गए हो। और आमिर नजीर भी चुप ਇਹਨਾਂ ਦੇ और शर्मी हालत चेक देख कर के लो, वो अपने जोर नबी बचा तो मुकरे दिया खड़े और हैं। इस बात को छोड़ के कोई और बात अपने करनी शुरू नबी कर तो दी। मुकर के और दौड़ गए हैं, जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैंने बताई दे रहे, अपने जवाब नबी तो दिया दौड़े था, फिरते हैं। वो जवाब सही था और वो सबूत ਸਾਹਮਣੇ इनको ਸੀਨਾ मिल ठोक गया। के बंदा बैठा इसलिए ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ उस ਕਹਿੰਦਾ बात को ਸਾਡਾ छोड़ ਅਬਦੁਲ के ਕੁਮਾਰ किसी और ਜੰਬਾ ਵਾ बात पे चले गए। ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ और ਦੀ अब ਤਾਕਤ ਨਾਲ इन्होंने ਖੜਾ गालियों ਹੋਇਆ पे आना है और चीखों दिल पे केड़ा आना खड़ा है होया? और उन्हें रोना है। और ये ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰੇ ये ਖੜੇ जो ਆ डॉक्टर डेरिंग साहब आए हैं, ਸ਼ਰਮ ये ਆਣੀ अब ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ रोने लग ਤੁਹਾਨੂੰ चुके ਸ਼ਰਮ हैं। ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ और आमिर नजीर की हालत खराब हो भाई चुकी अपने है। मिर्जा और साहब की आमिर तो मान लो, नजीर साड़ी नहीं मरनी भागी थे। जा रहे हैं और असल बात पे आने की ਹੁਣ बजाय आवाज किसी और कंबल की लग तरफ रही, जा रोना रहे हैं, हो गया दौड़े बेचारा, जा रहे रोना हैं, होया कहीं खड़ा। से किधर जाए जा रहे हैं। क्यों रोना अब होया 500 इस ਵੇਲੇ यूरो तो रोना दें। है मिर्जा साहब ने बंदा अहमद खड़ा अली कर साहब दिता 500 यूरो का इंतजाम करें। इन्होंने और खिलाफत इन्होंने जेड़ी ओ जब घुस मैं गई। शुरू हुआ था, इन्होंने अब वो तो बढ़ गई भाई। ये भी कह दिया कि अच्छा मैं 500 यूरो देता हूँ, ठीक है। और 500 नीचे- यूरो होने देने और खिलाफत ਕੱਢੋ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੇ 500 ਖਿਲਾਫਤ ਕੱਢੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ और आमिर नजीर को है उनका कोई बंदा? सवाल का जवाब भी टका के मिल गया, जिसपे उन्होंने 500 यूरो का चैलेंज किया ਝੂਠ था। ਮਿਲ ਗਿਆ अब ਜਵਾਬ 500 ਮਿਲ ਗਿਆ यूरो ਝੂਠ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੇ अब ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ अपनी ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ बात ਕਿ पे ਬੰਦਾ खड़े ਰੂਹੁਲ हो, ਕੁਦਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ अब ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ अपने ਖਲੀਫੇ बाप का ਹੋਣੇ मकाम दिखाएं। अपने मिर्जा गुलाम का अपने नबी तो मुकरे खड़े हैं खानदान का जी। सुन सबूत लो ना दें मर्जी। और 500 यूरो दे। अब हालत और खराब है, शर्म चोरी करो, जा रही शर्म है करो, और तो इधर से खलीफा उधर कटो भागी तो जा 500 रहे यूरो हैं। लवो। अब 500 यूरो खलीफा दें। खिलाफत और डॉक्टर कटो तो डेरिंग जो बुलाया है 500 यूरो चीखों वाला, लवो। गालियों वाला, ਤੇ शोर ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ मचाने ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕਿ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ बेचारे के पास गालियों के भाई एक आदमी बात करो अल्लाह के लिए, क्या है ये? एक आदमी बात कीजिए ना, एक आदमी बात कीजिए। अच्छा एक टॉपिक है चल रहा है, उसको सुन रहे हैं। बारी बारी मुझे बात करें बात नहीं प्लीज करने दे रहे। जज़ाकल्लाह। ये इस्लामी साहब ये बात ही नहीं करने दे रहे। बात तो आप सिंपल सी अपना है टाइम ले लेना, कि अपना टाइम ले 500 लेना। यूरो अब ये आप इस्कलानी साहब आपने मुझे लेके देने हैं, ठीक है। और अहमद अली अच्छा। साहब आपकी स्ट्रीम है, आपने लेके देनी है, ये दोनों मान गए हैं। मैं इसका सबूत देता हूं कि ऐसे मान गए हैं। अहमद अली साहब मुझे सबूत देने देना, एक मिनट सबूत तो देने दे। कोई नहीं बात तो भाई, करने दे। बोली जाना है, बोली अहमद अली जाना है। साहब बात सुने। अहमद अली सुन तो लीजिए, अगले का पहले जवाब ले लेना अहमद अली भाई सुन तो लीजिए। हाँ जी, देखिए माइक साहब, बंद करें प्लीज स्पीकर साहब माइक बंद सुनिए। करें प्लीज स्पीकर जी, जी पी साहब स्पीकर जी, जी साहब आप बात करें आप- देना आप- इस्कलानी साहब, मैं आपको सबूत देने लगा हूँ। तो सुन तो लीजिए मेरी बात, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। बात यह है कि आप अपनी बात करके फिर खामोश रहिए। अगर हाँ जी, आपको मुझे बात बात करने दें। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप अपनी बात करके खामोश रहिए। अगर आपको बोलने नहीं दिया जा रहा तो हम कहेंगे उनकी गलती है, बस इतनी सी बात है। आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। देखिए आमिर नजीर जो यहाँ पर घूम रहा है ना व्हाट्सएप की दुनिया में या इन ब्रोडो में घूम रहा है, सबसे अजीज तरीन शख्स मेरे लिए आमिर नजीर है, ये आप जान जाएं। लेकिन आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं उनको कुला डला कहूंगा, आपकी गलती है, ये याद रखना। खामखा क्यों बोल रहे हैं भाई, अपनी बारी पे बोले और बाद में खामोश रहें, बस इतना ही कहता हूँ जी। हाँ जी, अब बात ये है, बात सिंपल सी है। इन्होंने मुझे कहा कि इक़्तिबास दिखाएं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की, जिसमें उन्होंने खिलाफत का जिक्र किया हो,
ठीक है, उस बारे में मैंने इनको इक़्तिबास सिखा दी जिसमें कुदरत सानिया का जिक्र था, और कुदरत सानिया कैसे पूरी हुई उसकी मिसाल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से दी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कि उनके ज़रिए पूरी हुई। ठीक है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि कुदरत सानी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये नबी की वफ़ात के बाद कुदरत सानिया आएगी। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक खलीफा थे, इसी तरह खिलाफत कायम हुई। तो वो जो है हमने बता दिया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब में खिलाफत का जिक्र कर दिया है और निशानदेही कर दी है। अब ये इक़्तिबास मैंने दिखाना था, ये दिखा दिया। उसके बाद हुआ क्या कि आमिर नज़ीर साहब ने, एक तो मैंने कहा कि 500 यूरो दें, तो वो मेरी बात सुनने की बजाय मैं रिमूव हो गया, और रिमूव जब हुआ तो मुझे साथ ही कहते हैं कि मैं 500 यूरो देता हूँ, ये सेंटेंस कहा और मुझे फिर और मैं रिमूव हो गया। उसके बाद जब मैं दोबारा आया हूँ, फिर मैंने दोबारा 500 यूरो की डिमांड की है। इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने एक और क्वेश्चन कर दिया। अब एक और क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है, क्योंकि देखें चैलेंज था 500 यूरो का, उसका सवाल किया, उसका जवाब हो गया, उस सवाल को उन्होंने दोबारा नहीं किया और उन्होंने एक और सवाल कर दिया। इसका हमेशा ये मतलब होता है कि उस सवाल का जवाब आ गया है, अब ये कहीं और जा रहे हैं। तो इससे भी साबित हुआ कि ये वो उस जो 500 यूरो का सवाल था उसका जवाब इन्हें मिल गया है। अब मेरा सिंपल बात ये है कि ये इस बात को मानते हुए अब आप लोग 500 यूरो का इंतज़ाम करें। देखें, आमिर नज़ीर साहब को कहें कि 500 यूरो, ये अब मैं इनको अकाउंट नंबर दे देता हूँ, वो 500 यूरो ट्रांसफ़र कर दें। और ये मैं अहमद अली साहब को भी कहता हूँ जो अब्रॉड रन कर रहे हैं कि आप 500 यूरो का इंतज़ाम करें। ये एक, अब उनकी तो हालत थोड़ी बिगड़ रही है, आमिर नज़ीर साहब की, अनफॉर्चुनेटली उनकी हालत बिगड़ रही है। वो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जो इसका बताओ, उसका बताओ, इसका बताओ, और चीखें मार मार के कह रहे हैं, एक हालत बिगड़ने की निशानी है। तो वो अब उसका मतलब लेकिन साफ जाहिर हो गया कि जब दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे चले गए तो फिर पहला जो क्वेश्चन है उसका तो जवाब आ गया है ना, तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे चले गए। सिंपल सी बात है, ईमानदारी का सबूत दें। और बाय द वे, तारिक साहब के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि भाई मेरी बात एक हदीस, एक भाई बात सुनो। आखिरी बात कर दूं फिर। हाँ जी, अच्छा अब ठीक मैं कर दी, एक लंबा मत आखिरी बात कीजिए। कर दूं। तारिक साहब ने इनका झूठ ऐसा पकड़ा गया। इन्होंने कहा कि जी मैं ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी खिलाफत अल्लाह मिनहाजा नबूवा की, फिर मलूकियत, फिर खिलाफत अल्लाह मिनहाजा नबूवा। इन्होंने कहा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एग्जैक्ट इसी हदीस की एक्सप्लेनेशन की है। मैंने कहा दिखा दे। इन्होंने ना पेज दिखाया, ना वो इक्तबास दिखाई, और अपनी सूरत इस्तिखलाफ की इन्होंने तशरीह दिखाई, लेकिन उस हदीस की तशरीह नहीं दिखाई। और उसके बाद झूठ बोलते रहे कि उसकी तशरीह है, उसकी तशरीह हज़रत मसीह मौऊद ने की है, और लेकिन वो इक्तबास नहीं दिखा सके जिसमें उस हदीस की तशरीह हो। उनका झूठ पकड़ा गया। और पीछे कमेंट्स में भी लोग, क्योंकि कमेंट्स में लोग, ये आप लोग तो सारे मुखालफीन हैं ना हमारे, तो कमेंट्स में भी लोग ऐसी उल्टी पुल्टी बातें अपनी मेरी मुखालफत में कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप लोग कसम उठा लें, कसम उठाएं कि चले अब तारिक साहब का झूठा ही कितनी पकड़ा देर गया। लेक्चर एक देना, बंदे पीर ने साहब को कसम भी नहीं बोलने उठाई। दें। हाँ जी, कमेंट्स ये में देखें। एक बंदे ने कसम नहीं उठाई। और ये और चले जो भाई, अवान आपकी साहब, बात आ गई एक ना, जमील अब अवान देखें। साहब, उन्होंने भी कसम नहीं नहीं, उठाई। फिर अगर आपका उनको मैंने माइक कहा अपने कसम म्यूट उठाई, किया उन्होंने तो नहीं आपने उठाई। कहना है कि इनका जान झूठ के ही कारण पकड़ा आप गया। दूसरे बंदे को अच्छा, बिल्कुल मौका नहीं बात देते। दोबारा मैं 500 ओ अभी बस अब करे दोबारा भाई, बस कर भाई। हाँ जी, देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि अब मैंने आपके सामने इख्तिबार तारिक साहब एक मिनट अब पहले इसी तरह पीर साहब तू को मैं बोलने दें, आओगे। फिर एक अच्छा, अब मिनट 500 यार, एक यूरो मिनट मेरा पीर इंतजाम साहब, कर दें। और पीर साहब को तो बोल दें 500 500 500 करें। 500 पता नहीं हो रहे कितने भूखे बैठे हो तुसी। भाई पीर साहब आप बोल। ये सीकर यार अपनी सीकर बात साहब पे अब कायम आप रहे खामोश ना। रहे। सीकर साहब अब तो खामोश रहे ना, आपने बात की है अल्लाह के बंदे, अब आप खामोश वो रहे। बीच में, मेरी एक बात सुनो। भाई बहुत हो गया, आपकी हाँ, बीच बहुत में हो मुझे गई बस। कट कर रहे थे बार बार। नहीं हाँ जी, आपने बात हो 7 गई है मिनट हद बात करने। की है, 7 मिनट, 1 मिनट भाई। सीकर साहब आपने 7 मिनट बात की है। अब अच्छा, परेशान इतने ना हो, वो कट कर रहे थे बीच में। इस यार अभी ला म्यूट ना हौला करो, वला एक मिनट। नहीं, आपकी हो गई वो है मुझे खत्म, खत्म हो गई है। आप एक मेरी मिनट बात यार, सुन ले, बस हो गया हाँ, ना 7 मिनट, अब वो कितना मुझे कट चाहिए? कर रहे थे इसलिए बात लंबी होगी। अब आप बात कर। अच्छा ठीक है। सीकर साहब सबसे पहली बात मेरी ये जान जाए कि आप उमर या अबू बकर रजी ताला अन्हु, इसकी इस्लाह कर ले। रजी ताला नहीं है, रजी अल्लाह अन्हु। रजी 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 ताला नहीं, रजी अल्लाह अन्हु, ये आप दुरुस्त कर लें।
बाकी जवाब देंगे ताहिर चौहान साहब, क्या वाकईतन उन्होंने जवाब दिया है और क्या आप बात करेंगे? आपके नहीं, पास देखे पूरे ना 7 उन्होंने, देखिए मुकम्मल मैंने 7 ये मिनट। इक़्तिबास इतना लंबा पढ़ के सुनाया, उसमें मिर्ज़ा साहब की सारी बातें आ गई हैं। ये सिर्फ इस बात को लेते हैं कि जी उन्होंने हज़रत अबू बकर का जिक्र किया, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में किया? हज़रत अबू बकर का जिक्र करके उन्होंने आयत इस्तख़लाफ़ का जिक्र किया कि हज़रत अबू बकर का आना आयत इस्तख़लाफ़ के मुताबिक था, और दूसरी कुदरत भी आयत इस्तख़लाफ़ के मुताबिक होगी। और ये बड़ा आसान है कि जब आप कहते हैं कि दूसरी कुदरत आयत इस्तख़लाफ़ के मुताबिक होगी, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि वो उस वक़्त तक मिलकर काम करो जब तक कोई खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा ना हो। हम आयत इस्तख़लाफ़ की तफ़सीर अगर देखें जो मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई है, सूरह नूर की आयत 56, उसमें मिर्ज़ा साहब दायमी खलीफों का वादा का जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी कुदरत को भी वो कह रहे हैं कि वो दायमी होगी। तो आप देख लेते हैं कि मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं उससे। देखें मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं। किस इंसान की कॉन्शियस इस बात को कबूल कर सकती है कि बग़ैर इसके कि कुरान करीम का मिन जानिब अल्लाह होना इस बात पर साबित किया जाए कि यूं ही उस पर छुरी फेर दी जाए। बस यही वजह है कि खुदा ताला ने दायमी खलीफों का वादा दिया ता वो ज़िल्ली तौर पर अनवार नबूवत पाकर दुनिया को मुल्जिम करें और कुरान करीम की खूबियाँ और उसकी पाक बरक़ात लोगों को दिखलावें। ये भी याद रहे कि हर एक ज़माना के लिए अतमाम हुज्जत भी मुख्तलिफ रंगों से हुआ करता है, और मुजद्दद वक्त उन क़ुव्वतों और मलिकों और कमालात के साथ आता है जो मौजूदा मफासिद का इस्लाह पाना उन कमालात पर मौकूफ़ होता है। सो हमेशा खुदा ताला इसी तरह करता रहेगा। ये सूरह नूर की आयत 56 की ये उन्होंने तफसीर की हुई है, 126 सफ़ह पे ये है। यानी मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि वो दायमी रूहानी खिलाफत जो है वो सिलसिला मुजद्ददीन है, वो एक मुजद्दद है, वही है जो खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा होगा। और उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो दरमियानी उसके अंदर फासला है, एक तो ये कि आप मिलकर दुआएं करें, और दूसरी ये कि वहदत को कायम रखने के लिए आप 40 मोमन जिसके ऊपर इत्फाक करें उसको आप अपना अमीर बना लें। तो खिलाफत का तो मिर्ज़ा साहब ने कहीं जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने रूहानी दायमी खिलाफत का जिक्र किया है, जो सिलसिला मुजद्ददीन है उसके वो खुद 13वें खलीफा हैं। तो आमिर नज़ीर साहब इसको 500 यूरो क्यों दें, जब खलीफा का हमने मुतालबा तो ये था कि खिलाफत का बताएं, कहाँ मिर्ज़ा साहब ने कहा मेरे बाद खिलाफत चलेगी, तो मिर्ज़ा साहब ने ऐसा नहीं कहा। फिर देखिए हकीम नूरुद्दीन साहब जो थे वो भी अपने आप को खलीफा अला मिनहाज नबूवत नहीं समझते थे, ना वो अपने आप को दूसरी कुदरत का मज़हर समझते थे। चुनांचे ये जो इनकी अपनी तारीख़ अहमदियत किताब है उसमें लिखा हुआ है कि हकीम नूरुद्दीन साहब के ज़माने में लोगों को ये तहरीक की गई कि सब मिलकर कुदरत सुआनिया के जल्द आने के लिए दुआ करें, तो वो मिलकर दुआएं कर होती रहीं कादियान में। तो अगर कुदरत सानिया हकीम नूरुद्दीन साहब थे तो वो कहते कि भी दुआ करने की ज़रूरत है, मैं तो आ गया हूँ, कुदरत सानिया हो गई है। इसलिए इस लिहाज से भी इनकी ये बात गलत है। और दूसरे है कि वल वसीयत में मिर्ज़ा साहब ने बता दिया वो कुदरत सानिया कौन होगा, वो खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा होने वाला कौन होगा। मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं उसमें कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा दिया गया है कि वो मेरी ज़ुर्रियत में एक शख्स मबूस होगा जिसको वही से मखसूस किया जाएगा, और उसकी निशानी भी बता दी कि वो एक मामूली इंसान होगा देखने में। तो अब ये बातें तो इनके किसी खलीफा के ऊपर पूरी नहीं होती, ना किसी ने वही का उन्होंने कोई दावा किया है, ना वो कुछ सदी के सर पे आए हैं कोई। तो इनकी ये बात जो है गलत है, खिलाफत इन्होंने फिर भी नहीं बनाई। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ये मुजद्दिदीन का सिलसिला है जो क़यामत तक जारी है, और आयत इस्तख़लाफ़ के मुताबिक है वो, और हज़रत अबू बकर भी आयत इस्तख़लाफ़ के मुताबिक थे। तो इसलिए ये ट्रुथ सीकर साहब का जो ये शोर है ना, ये फजूल है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ये वो बात साबित नहीं कर सके जिसके लिए इनको बुलाया गया था। जी हाँ जी, अब मैं अब जवाब दूं। सीकर साहब 1 मिनट प्लीज। आप तार साहब अपने मैंने 1 मिनट आपके को छोड़ देना, आपको पता नहीं कि आप उन्होंने जो बात की है उसका जवाब मुझे देने दें आराम से। नहीं, आपको आराम जवाब देने दूंगा, लेकिन 1 मिनट मुझे दीजिए प्लीज। अगर आप ना चाहें तो मैं छोड़ दूं। 1 मिनट में आपका ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। चौहान साहब, आपकी गुफ्तगू से मैं ये समझा हूं कि जो भी इख्तिबास इन्होंने पेश की उससे यही जाहिर होता है और यही बताना चाहते हैं आपके जमात के कायद कि मुजद्दिदीन का सिलसिला होगा। यहाँ खिलाफत का कोई जिक्र नहीं।
क्या आपने यही फरमाया? तो उन्होंने मिर्जा साहब ने जब हजरत अबू बकर का जिक्र किया ना, तो उनमें उन्होंने लिखा कि ये आयत इस्तखलाफ के मुताबिक जो वादा है ना, उसके मुताबिक वो है कुदरत सामने। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ खिलाफत का जिक्र हुआ है? क्या कहना चाहते खिलाफत का, हाँ नहीं, खिलाफत का जिक्र नहीं, खिलाफत का जिक्र नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कुदरत झूठी सानिया बोला, को ठीक है। एक्सप्लेन किया है। हैं? तो सच्ची बात करें। एक मिनट स्पीकर साहब, बात खत्म हो जाएगी। एक मिनट, आप जल्दी मत करें। या आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते तो ठीक है, आप जवाब दीजिए। आप जवाब देंगे नहीं आप करें, या बात मुझे? करें। हाँ, देखिए जितनी भी आपने बातें की, इससे बिल्कुल यही मालूम हो रहा है कि यहाँ पर अभी तक खिलाफत का कोई मसला सामने नहीं आया, बल्कि जी मुजद्दिदीन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इल्हाम पाकर, क्योंकि वो मुजद्दिद है, जो जी इल्हाम पाकर और अल्लाह से रोशनी पाकर वो कौम को गाइड करता रहेगा। ये जी सिलसिला जारी है। यहाँ जी जितनी भी इख्तिबास है, यहाँ मुजद्दिदीन के लिए है। यही कहना हाँ चाहते हैं जी आप? हाँ जी, यही कहना अच्छा, चाहता हूँ। ठीक ठीक। अच्छा, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम क्यों आया? ये क्यों आया? क्योंकि इसको वो वाज़ेह कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा थे और खिलाफत अला मिनहाज नबूवत पर थे। हाँ, तो इसका मतलब है यहाँ भी खलीफा का जिक्र तो आ रहा है, तो इसको आप नहीं क्यों नहीं नहीं मान रहे? नहीं, मैं समझाता हूँ। एक सेकंड नहीं ठहरो बस जरा, नहीं नहीं, आमिर फिरस्तीन नदवी भाई। साहब, आमिर नदवी नहीं साहब नहीं, एक खामोशी सेकंड इख्तियार करें। एक सेकंड मैं समझाता हूँ। तारिक चौहान साहब भी शायद ना इस तरह वजाहत कर ये सकें, खामोशी इख्तियार क्योंकि करें मेरा आमिर काम। नदवी साहब। ये फिर दो हौसला नंबरियां हैं। हौसला रखें भाई, मेरी बात सुने। मैं और तारिक चौहान साहब दोनों ने यही दो दोनों नंबरी ने है। आपको मुझे इनाम बोलने देना है नहीं ना। आप दिया, खामोश हो मुझे जाए, बोलने नहीं दिया। बात को बयान स्पीकर मुझे साहब, बोलने आप बात नहीं को दिया। बयान कर।